Hi everyone, this is Akansha. Let me introduce myself first. Okay, she is joining. Let's wait for her. Till then, let me introduce myself. My name is Akansha, and I am a parent coach. And I have started this live interview sessions now. So today our topic is mindful parenting. We will talk about mindful parenting with Monica Nagpal ma'am. So she'll be joining in a while. Let's wait for her. So why I started this type of interviews and all. So to help all you parents, all my community who are there with me, they are with me. So I will bring some famous, not famous or some highly qualified people here in my interview, so that you would be able to know more about parenting. So we are trying hard to Nikhar in the video. Let's see how it works. Hi, hello ma'am. Good evening. How are you? All well, Akansha. Thank you so much for having this wonderful live today. बहुत अच्छा लग Thank you, रहा है ma'am. आपसे Thanks to मिलके। you. Same here, ma'am. Thanks to you for coming and telling all of us who will see this video now live and afterwards also that what is mindful parenting. I have decoded it earlier in my live session, but I think you will enhance it and you will tell आप बहुत सारे लोगों को और भी बता पाएंगी माइंडफुल पेरेंटिंग के बारे में. तो आप थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. जरूर Yes, जरूर. So as Akansha is also a parenting coach, so I am also a parenting coach, but along with that I am also a mindfulness and meditation coach. So ये होने से क्या हो रहा है कि जो mindful parenting होने से हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि पेरेंट्स को कैसे माइंडफुली बच्चों को अपना संभालना है. सो दैट इज व्हाई माइंडफुल पेरेंटिंग हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. So we will talk more on this, but myself, I am been practicing actually Buddhism for very long time. So that is how I connected to mindfulness also more. And I have done my PhD in education, so I am also an educator. So I speak on sustainability also. I have been talking on sustainability. So a lot of things which are there, which are the current important things is what we all should know. So I am being able to do all of that. Yeah. So clapping for Monica ma'am. It's been nice to know you ma'am. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ ये लाइव कर पा रही हूँ और हमारे थ्रू शायद बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज जानेंगे कि माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है, क्यों हमें बेसिकली नॉर्मल शब्दों में माइंडफुलनेस का मतलब है कि सोच समझ के हमें जो भी करना चाहिए वो सोच समझ के करना चाहिए अपने बच्चों के सामने. तो हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो मेरा पहला क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि माइंडफुलनेस क्यों डिफरेंट है, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज होती है ना कि जो हम पुराने तरीके यूज कर रहे हैं वो क्यों नहीं सही है, या अभी हम ऐसा क्या करें, क्या डिफरेंट है इसमें. तो कुछ इस पे आप एनलाइटन करिए सारे व्यूअर्स को. जरूर आकांक्षा. सो पेरेंटिंग तो सबको पता है कि हम कर ही रहे हैं, बच्चों को पैदा करना है फिर उनको पालना है, और उसके लिए कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक ऐसा कुछ अलग से कुछ कोर्स नहीं है कि जो हम ये कोर्स कर लेंगे तो हमारे को, क्योंकि हर पेरेंट अलग होता है. एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. सो वी कैन नॉट जनरलाइज दैट दिस इज हाउ अ पेरेंटिंग शुड बी डन. एंड माइंडफुल पेरेंटिंग का अलग होने का क्या बात है कि इट इज मोर अबाउट द पेरेंट, that how a parent has to behave in front of the child. So it is mindful does not mean सोच समझ के. अगर हम हिंदी में उसको अनुवाद करें तो मैं ये बोलूंगी कि उसका मतलब है ध्यान से, बिकॉज माइंडफुलनेस का मतलब ही ध्यान है. जैसे हमारे को कभी बचपन में माँ बोलती थी बेटा ध्यान से जाओ, जरा ध्यान लगा के पढ़ो, है ना. तो वो ध्यान जो है वो है माइंडफुलनेस. सोच समझ के पढ़ो मतलब तो फिर दिमाग की बात आ जाती है. Mindfulness is more towards doing from your heart. So it is about your heart and more about your, not about your mind. क्योंकि माइंड से सोच के तो बहुत स्ट्रेटेजिकली हम लोग पेरेंटिंग करते हैं कि भाई फलानी किताब में पढ़ लिया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उससे सुन लिया, किसी के अपने पेरेंट्स से ऐसा समझ लिया, या अपने किसी रिश्तेदार से समझ लिया, एडवाइस भी मिलती है बहुत सारी. हाँ, इतने सारे हमारे को टिप्स मिलते रहते हैं सबसे.
तो दैट इज नॉट एक्चुअली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर. वी आर लुकिंग हियर दैट हम अपने तरीके से, जो हमारा यहाँ पे घर में जैसा एटमॉस्फेयर है, उसके मुताबिक हाउ अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कस्टमाइज आवर पेरेंटिंग. सो दैट इज एक्चुअली माइंडफुल पेरेंटिंग. जैसे मतलब मैं आपके कहने का मतलब ये समझूंगी, जैसे कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो वहाँ डिफरेंट लोग हैं, तो उनकी पेरेंटिंग स्टाइल अलग होनी चाहिए, और जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं उनकी पेरेंटिंग स्टाइल अलग होनी चाहिए. तो एनवायरमेंट के हिसाब से या आपके बच्चे के हिसाब से आपकी पेरेंटिंग चेंज होनी चाहिए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बोला. सो मैम, ऐसे इससे क्या क्या हेल्प हो सकती है पेरेंट्स को, मतलब उन्हें मतलब उन्हें क्या अच्छा हो जाएगा अगर वो माइंडफुली पेरेंटिंग करें तो? सही बात है कि अगर हम माइंडफुली पेरेंटिंग, अगर आप अपनी जो साधारण पेरेंटिंग कर रहे हैं, एक सीन अगर हम लेते हैं कि बच्चा स्कूल से आया है, बहुत दुखी है, वो आके अपना बैग इधर पटक देता है क्योंकि वो दुखी भी है और हमें लग रहा है कि वो गुस्सा है. तो हम बोलते हैं ये क्या तमीज है तुम्हारी, बैग पटक देते हो, ऐसे ये कर देते हो. ये तो एक ऑर्डिनरी जो पेरेंट होगा वो इस तरह से बिहेव करेगा उसके साथ कि उसको आते ही एक डांट लगा देगा. दे विल रियली एंग्री कि हाउ हैव आई रेज्ड यू लाइक दिस, क्या मैंने तुम्हें ऐसा बड़ा किया है कि तुम आते बैग पटक दे रहे हो, किस बात का गुस्सा है तुम्हारा. बट अ माइंडफुल पेरेंट ऑन द कॉन्ट्ररी will first see that what is behind that anger, because the anger is only in front. Actually the child is very sad probably, or probably guilty, or probably ashamed of something. So there are different emotions behind that anger. It is not the anger which we have to deal. We have to deal with all the other emotions which is behind those anger. So as a mindful parent, I will be mindful of the things which is behind, which I cannot see, but I can hear it from my heart. मुझे अपने दिल से पता चल जाएगा कि आज मेरे बच्चे का मूड क्यों खराब है, What is the reason, है ना. तो इसीलिए उससे मैं फटाफट अपना जो तरीका है वो बदल लूंगी और मैं बोलूंगी कि बेटा चलो ठीक है, 2 मिनट हम बात कर लेते हैं. वो बोलेगा मुझे बात नहीं करनी है, कमरा बंद करके बैठ जाएगा, तो उसको टाइम देंगे, हम स्पेस देंगे. ये नहीं कि फिर दरवाजा पीटते रहेंगे, चलो खाना तो खा लो, मेरा काम खत्म हो जाए, तुम अपना खाना खाओ, फिर पढ़ाई करनी है. एज अ पेरेंट जो दूसरे नॉर्मल पेरेंट होंगे वो ये तरीके से बोलेंगे, बट अ माइंडफुल पेरेंट विल रियली अंडरस्टैंड द चाइल्ड. तो उसको बोलती हूँ मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर आप पेरेंट हो ना तो आपको एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है, कि उस बच्चे की फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. जो कर रहा है वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि वो कर रहा है, पर एज अ पेरेंट ये इंपॉर्टेंट है कि वो कर क्यों रहा है, ये आपको पता होना ज्यादा जरूरी है कि वो ये चीज कर क्यों रहा है. तो शायद इसे ही माइंडफुल पेरेंटिंग कहते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूंगी अपने बेटे का ही, कि जब मैं अपने बेटे के साथ मतलब अपने बेटे शुरू में स्कूल जाता था, कई बार वो चला जाता था, कई बार वो रोता था कि मुझे नहीं जाना मम्मा, मैं आपको मिस करता हूँ. पर कुछ टाइम तक मैंने ये चीज रियलाइज करी कि वो जिस दिन भी ये चीज बोलता है ना कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं उसे डांट के भेज देती थी, पर उसका रीजन होता था कि उसको अंदर से अच्छा नहीं फील हो रहा होता था और वो शाम तक बीमार हो जाता था. तो मतलब उसे सुबह से एक था कि वो अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहा है, इसलिए बोल रहा मुझे स्कूल नहीं जाना है, पर हम उन्हें धक्के से डांट डपट के स्कूल छोड़ ही आते थे कि स्कूल चले जाओ बस. तो वो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि वो एक्चुअली में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमें नहीं जाना है या जाना है. Absolutely right, Akansha. Yeah, absolutely right. और मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि हर कोई ऐसा बोलते हो कि नॉर्मली पेरेंट्स तो यही बोलेंगे कि मैंने आपको यही सिखाया है, आपको यही तमीज है. तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो ये पेरेंट्स फेस करते हैं ड्यूरिंग दिस, अगर वो करना भी चाहें तो वो शायद नहीं कर पाते हैं, तो कैसे कौन से चैलेंजेस आते हैं इस माइंडफुल पेरेंटिंग? ये बात को मैं पूरा कंप्लीट करना चाहूंगी कि एक तो ये फायदा हो जाएगा कि आपका जो बॉन्ड है आपके बच्चे के साथ वो अच्छा हो जाएगा. You will have good bond with your son or your daughter, कि आप उनका, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ रहे हैं, माई पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग मी, राइट. सो दे विल नॉट सीक दैट आउटसाइड. क्योंकि आजकल हम क्या देखते हैं, स्पेशली टीनेजर्स के अंदर हम देखते हैं कि वो बच्चे सिर्फ दोस्तों के अंदर ही अपनी बातें करते हैं, उनके साथ ही शेयर करते हैं, क्योंकि हम उनको समझते नहीं है. वो बोलते हैं आपका जनरेशन गैप है, हम नहीं आप लोग हमें समझ ही नहीं रहे. तो उसी से ये माइंडफुल पेरेंटिंग का ये फायदा होगा कि योर चाइल्ड विल बी योर चाइल्ड. They will not go outside and vent somebody outside. They will share everything with you. So that is one very big thing which will happen with us. And then when you are mindful, you are able to also regulate your own emotions. आपको भी एकदम से गुस्सा नहीं आएगा. You will have regulated emotions for yourself also, right? You will be able to have balanced. ये नहीं कि आपका गुस्सा आ रहा है तो जोर से आ रहा है, प्यार है तो एकदम से बहुत निछावर कर रहे हो, ये गिफ्ट ला रहे हो, ये गिफ्ट ला रहे हो.
तो वो नहीं होना चाहिए ना. इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ लव. So that emotional regulation you will learn. Third thing also that which you are going to learn when you are being a mindful parent is that you will help your child to become more resilient. क्योंकि आप उसकी हर बात नहीं सुनेंगे. अगर दूसरा पेरेंट होगा तो उसकी, क्योंकि मेरे बच्चे का मूड खराब नहीं होना चाहिए तो मैं उसकी हर बात सुनूंगी. अच्छा वो चॉकलेट बोल रहे तो चॉकलेट दे दो, खिलौना मांग रहे तो खिलौना दे दो, वीडियो गेम जो भी उनको गिफ्ट चाहिए वी कीप ऑन गिविंग एंड वी आल्सो कीप ऑन गिविंग रिवॉर्ड्स व्हेन दे गुड गेट गुड मार्क्स. तो हम उनको इस तरह से एनकरेज करते हैं, जबकि वो तरीका ठीक नहीं है रिवॉर्ड वाला देने का हर चीज के लिए. नो, just appreciation could be a reward in itself. Why you have to give a material thing as a reward? So that is very important to understand. So that child will become more resilient. कि अगर मुझे ये अभी इस बार नहीं मिला है या अगर मैं इस बार फेल हो गया हूँ तो आई कैन कम बैक. सो दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर आपने फेल होने के टाइम पे उसको डांट दिया तो वो बच्चा रेजिलिएंट कैसे बनेगा. नेक्स्ट टाइम वो अगर फेल होगा तो उसको स्कूल से ही टेंशन शुरू हो जाएगी, घर जाके अब डांट पड़ने वाली है. ऐसा भी हो सकता है कि बड़े होके वो आपसे झूठ भी बोलना शुरू कर दे, वो आपको बताए ना कि ऐसा बताएगा तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी कि वो फेल क्यों हो रहा है, उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही नहीं, एक और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. राइट. ये एक हमारा हो जाएगा कि हम ये बच्चे का जो इमोशंस है वो रेगुलेट उनके भी हो जाएंगे और दे विल बिकम मोर रेजिलिएंट. फिर आपका स्ट्रेस, सबसे बड़ी जो आजकल की प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस. सो बीइंग माइंडफुल हेल्प्स यू टू बी लिटिल लेस स्ट्रेस. आपको स्ट्रेस कम होगा क्योंकि आपको हर समय एंजाइटी नहीं रहेगी कि अब ये करना है, अब ये एजेंडा खत्म हो, अब ये. माइंडफुली आप काम करें, आपको पता है कि ये सब हो रहा है, ये करना है. सो आई एम ऑल्सो लाइक saying thank you to all the guests who are coming and joining and giving us hearts. Thank you so much. Yes, thank you so much for all of you joining and hope you are enjoying the show with Akanksha. Akanksha is being doing wonderful as a parenting coach and I am also helping her to be a mindful parent. Yeah. Yes, ma'am. And ma'am is also doing very well. Yes. So we will now talk about the challenges. I would call her a doctor of hope and happiness. Yes. Yes. So we are talking about the challenges now. Like what are the challenges? Because mindfulness हर चीज का थोड़ा सा pros and cons भी होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो we will have some pros, but इतने नहीं. Only thing which you can see sometimes आप सोच रहे हो कि मैं माइंडफुली सब कुछ टैकल कर लूंगा, लेकिन कभी कभी वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स थोड़े क्लिनिकल हो सकते हैं. सो एट दैट टाइम यू हैव टू बी मोर जुडिशियस कि ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है, ये हर चीज में अपने तरीके से सॉल्व यहाँ नहीं कर पाऊंगा. तो वो आपको, उसके लिए आपको और माइंडफुल रहना पड़ता है. तो वो एक आपको चैलेंज हो सकता है शुरू में, क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, आई एम शोइंग एम्पैथी, आई एम शोइंग कंपैशन, बट द चाइल्ड इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू बिहेव. फिर आपका जो एक सब्र का बांध है वो टूट जाता है एंड सडनली यू बिहेव इन ऑर्डिनरी वे एज एनी अदर पेरेंट. So that you have to understand, probably there is a clinical problem with the child. So it is good to take professional advice at that time to a psychologist or a professional, then you can take that. So mindful, sometimes you get swayed that I am doing the right thing, this is the best thing that I am doing, then still I am not getting the required results. So all that you have to understand. So these are the challenges which can come when you are being a mindful parent sometimes. And also sometimes the behavior of the child is like developing. अभी आप बच्चा है, अभी छोटा है, फिर बड़ा हो रहा है, like from a small toddler they are becoming small children and then they are becoming a teenager. तो धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं. तो every stage you think that you have to change. So that can be a challenge. अगर आप अपने बच्चों को, अभी आपके बच्चे अगर टीनेजर है और अभी से आप माइंडफुलनेस शुरू करोगे तो उन बच्चों को उस चीज को समझने में या वो रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो गए, उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो उसको टाइम लगेगा. छोटे बच्चों में जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है, जल्दी अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, बट बड़े बच्चों को नेचर चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है, बच्चों को भी लगता है. पर ट्राई करने से सब कुछ हो सकता है. और मैम ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि धीरे अगर आप नहीं कंसल्ट करेंगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और कम नहीं होगी अपने आप से. तो इसमें ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं होती है. मेन मोटिव तो ये कि कोई शर्म वाली बात नहीं होती. जैसे आप खांसी जुकाम के लिए अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं डॉक्टर के पास, वैसे आप इस चीज के लिए भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं. तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है. तो मैम आप प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं इसके कि हम कैसे प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस की और क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारी पेरेंटिंग माइंडफुल बने और इफेक्टिव हो जाए.
बिल्कुल। तो माइंडफुलनेस के खुद के अपने प्रिंसिपल्स ही होते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स. यू कैन जॉइन माय कोर्स पेरेंटिंग विद अ पॉज विद फॉर दैट ऑल द डिटेल्स. बट या, few things which I can share with you here is also that as a mindful parent, first thing is to also think about your own self. तो आप अपने से शुरुआत करिए पहले. बच्चे को आपका जो आपका एक्सटेंशन है, बच्चा आपका एक्सटेंशन है एक तरह से. ही इज योर एनवायरमेंट, शी इज योर एनवायरमेंट. सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ योरसेल्फ. सो फर्स्ट बीइंग माइंडफुल फॉर योर ओन सेल्फ, कि मेरा मूड क्यों खराब होता है बार बार, मैं क्यों सिर्फ पुराना ही सोचती रहती हूँ, आगे का ही सोचती रहती हूँ, मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा ये बनेगा. So am I being in present? Because mindfulness का सबसे बड़ा principle है being in present. So you have to be in present. So for that, practically speaking, first thing we have to do is breathing exercises. So we teach lot of meditations in my course also. So we do meditations. Mindful walking is one which you can do with your children also. बच्चों के साथ मिलके आप walk करें, तो इधर उधर की चीजें आप देख रहे हैं. तो ये नहीं कि दूसरा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट जो माइंडफुलनेस का वो है नॉन जजमेंट. सो फर्स्ट थिंग टू नॉट जज योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड. तो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो पहले ही आते ही रिपोर्ट कार्ड ये नहीं बोलेंगे कि उसके बच्चे के तो इतने नंबर आए, आपके इतने नंबर क्यों आए, या आपका भाई तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद मैंने उसे इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया, मेरी कहीं कमी. अपने आप को भी एट द एंड बच्चे के सामने तो नहीं करते, पर अंदर ही अंदर खुद को भी जज करते हैं. फिर और गुस्सा आता है, वो गुस्सा बच्चों पे निकलता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो चक्कर चलता ही रहता है. दैट विशियस साइकिल विल गो ऑन. अपने सिबलिंग से उनको हम कंपेयर करते हैं कि वो तो ये ऐसे कर रहे, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और आप तो नहीं करते हो. वो इतना जल्दी वो सब तरह का खाना खाते हैं, आपको नखरे क्यों है कि आप सिर्फ ये वाला खाना खा रहे हैं. So we start comparing and judging our children. So that is not right as a mindful parent. So first thing is to stop judging them and be in the present and showing lot of compassion to them. जैसे हमने पहले बात की कि understand them. Yes. तो उस situation में वो ऐसा क्यों behave कर रहे हैं. That is very important to understand in that situation. You have to understand, be mindful in the present. आज के बारे में सोच. Yes. अभी के बारे में सोच. And gratitude journaling is a very good thing to do practically also with your children also. You can do that. अगर आप रोज नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे हम लोग एक माइंडफुलनेस का जार बना के रखते हैं, ग्रेटिट्यूड जार. या सो यू कैन पूरे हफ्ते बच्चे सोच सकते हैं कि लास्ट में संडे के दिन सब लोग फैमिली एज ए फैमिली वी कैन सिट डाउन एंड वी कैन राइट कि ये पूरे हफ्ते में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, तो किस चीज को हमें थैंक यू देना चाहिए. मम्मी को, पापा को, दादी दादा है तो उनको, या किसी फ्रेंड को, या कोई मेड को, या किसी को भी आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप फिर उनका नाम लिख के आप ग्रेटिट्यूड. तो फिर एक महीने के बाद फिर आप जब देखते हैं कि अरे किसने किस किस को ग्रेटिट्यूड दिया, तो यू फील गुड अबाउट इट. प्रॉब्ली यू वांट टू थैंक योर चाइल्ड बिकॉज़ एक फैमिली डिस्कशन भी हो जाएगी कि उसको ऐसा क्यों फील हुआ, किस इंसान को थैंक यू बोलना चाहिए, या क्या हुआ उनकी पूरे हफ्ते में लाइफ में. तो वो भी एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाएगा इससे. बिल्कुल. तो फिर बच्चों को आपने थैंक यू बोला, क्योंकि आप भी कुछ बोलेंगे ना, ये नहीं कि आप बच्चे ही आपको थैंक यू बोलें. आपका भी फर्स्ट है उनको थैंक यू बोलने के लिए ना, कि दे आर देयर, दे बिहेव प्रॉपर्ली एंड और कुछ भी नहीं किया उन्होंने. जस्ट बीइंग देयर इन योर लाइफ इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव. दे हैव कॉल्ड यू मम्मी एंड पापा एंड they have made you parents, so that itself is a beautiful thing to do. So we can be grateful in just for that also to them. Yeah, for their good health. Yes. So all of these tips if you take, you can really practically be mindful on a day-to-day basis. It can become your part of life. It is not something separate from your life. Yes. कुछ अलग नहीं करना है आपको. मेडिटेट, और मेडिटेट करने बहुत अच्छा ऑप्शन है ये. मैंने पहले भी बताया था, पेरेंट्स को मेडिटेट करना चाहे 5-10 मिनट करें, 15 स्टार्टिंग 5-10 मिनट से करें, ताकि आप रिलैक्स रहें. अब जितना रिलैक्स रहेंगे ना, उतना आप बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे या उन्हें समझा पाएंगे कोई भी चीज. अगर आप माइंड से रिलैक्स नहीं है तो फिर वो वही जो आप जो साइकिल है वो चलती ही रहती है, वो फिर एंड नहीं होती है. यस मैम. तो नाउ आई रिक्वेस्ट जो भी हमें सुन रहे हैं या जो भी अभी हमें देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं कुछ भी रिगार्डिंग माइंडफुल पेरेंटिंग के, तो वो यहाँ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. और बाद में भी जो हमारा ये लाइव देखेंगे, अगर उन्हें भी करना होगा तो डू कमेंट.
आपको जो भी सवाल है, मैं या मोनिका मैम जो भी होगा वो आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे और आपको हेल्प करने में पूरी आपके साथ है, आपकी हेल्प के लिए। बिल्कुल, तो हमारा भी अपना कोर्स है पेरेंटिंग विद अ पॉज जो मैं करती हूँ। आई विल बी स्टार्टिंग माय कोर्स इन मे। आई विल बी सेंडिंग नोटिफिकेशन उसके लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो Okay. इसके अंदर हम पूरा कोर्स करेंगे कि कैसे वी कैन रियली गो अबाउट बीइंग अ माइंडफुल पेरेंट। सो वी Mindful कैन parent. जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। लास्टली आई वांट टू थैंक यू कि आप आए यहाँ पे, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमको। एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, Thank हैव you, अ नाइस Kansha, डे। for having me here, and all the best for your parenting journey also. Thank you so थैंक much. यू सो मच मैम। Thank थैंक यू, बाय you. बाय। बाय मैम। Bye. Bye.